Hello my lovely children, welcome back. Let's start today's class. This lecture is for the students of class 1, subject mathematics, chapter number 2, money, and it's our lecture number 3. Dear children, we have done our 2 lectures in this series and today we are going to do lecture number 3. In lecture number 1, we discussed commonly used coins and notes. In lecture number 2, we did addition of money. And today let's see what we are going to discuss in this video. And today's subtopic is subtracting money. Let's spell the spelling SUBTRACTING, subtracting money. Subtract means minus karna, subtract karna, okay, in which you do backward counting. Very nice. And money, which I have discussed with you. So today we are going to do subtracting money. अब मनी को माइनस करेंगे. Children, in this one, this is the picture given to you and the topic is subtracting money, you know. And in this one, this is a toy shop and there are so many toys including tag marks. Price tags are also given on all the toys. Okay, सारे toys के ऊपर price tag given है. So according to the price tag, question would be asked to you and you have to give their answer. Okay children, such as this monkey costs rupees 100 and this toy cost rupees 50. This is 100 rupees and this one teddy bear is rupees 90. This ball cost 30 rupees and this bat, a single bat, 80 rupees and this puppy 60 rupees. This robot 70 rupees and this helicopter 30 rupees. Okay children, so price tag is given. Whenever you go to shop, if you will notice, then you would find that many of the products are including price tags. Not many, if you can say it, most of the products उनके ऊपर प्राइस टैग लगा होता है कि ये कितने रुपए का ये प्रोडक्ट होता है, MRP होती है उनके ऊपर. ओके, तो ऐसे ही ये टॉयज़ के ऊपर भी प्राइस टैग लगा हुआ है. अकॉर्डिंगली शॉपिंग कैन बी डन. उनको अकॉर्डिंगली हम परचेज कर सकते हैं. यू हैव टू कीप योर सेल्फ एट दिस बॉयज़ प्लेस. आपको रखना है. क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड टू यू. क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड देन आंसर वुड बी गिवन. तब उनके आंसर करने में. ओके, सो लेट अस टेक व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. Children, in this one the picture will be same and according to the picture you have to give the answer of asked question. जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपको उसको आंसर करना है. Okay, let us see what is our question number 1. Here part A. If you buy a monkey, how much money are you left with? Calculate and find the answer. The condition 1, or you can say it's question number 1. If you buy a monkey, अगर आप एक monkey खरीदते हो, how much money are you left with? आपके पास कितनी मनी बचेगी. लेफ्ट मतलब बचना. चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन लेट मी मेक यू क्लियर. आपको सम सॉल्व करने से पहले इट इज नेसेसरी टू रीड द क्वेश्चन थ्रोली. ओके, थ्रोली आपको क्वेश्चन को रीड करना है. इट विल एनहांस योर रीडिंग स्किल्स एज वेल एज योर वोकैबुलरी. इससे आपकी रीडिंग स्किल्स भी एनहांस होगी, बढ़ेगी और आपकी वोकैबुलरी भी एनरिच होगी. ओके चिल्ड्रन, सो आपको इसको पढ़ना है, इसके मीनिंग को गेट करना है. व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन,
कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. नॉट ओनली पिक्ड द नंबर्स एंड देन डिड आंसर. नो, मैथ इज नॉट ओनली लाइक दैट. ओके, आपको इसको रीड भी करना है, उसको समझना भी है. अगर आप एक मंकी परचेज करते हो तो आपके पास कितने रुपीस बचेंगे? चिल्ड्रन, you have to pay attention here. Whenever you have some money, okay, and you purchase something, it means you have spent money, your money is decreasing. आपकी मनी कम हो रही है. okay? और अगर आपको कोई एडिशनल देता है पैसे, इट मीन्स आपकी मनी इंक्रीज हो गई. सो इन द केस ऑफ इंक्रीमेंट यू विल डू एडिशन. और जब आप कुछ परचेज कर रहे हो मतलब आपकी मनी कम हो गई, तो आप करेंगे सब्ट्रैक्शन. ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, क्योंकि आप एक मंकी परचेज करोगे तो आपके पैसे कम हो जाएंगे. सो लेट अस डू हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट अलोंग विद यू. Initially, let me tell you, total money is rupees 100. This is not clear in this picture, but as it is given in your book, total amount is 100 rupees and the cost of monkey is also 100 rupees. It means subtract 100 rupees from 100 rupees. Now, let's do subtraction. Children, it is very common thing. जब आप 100 rupees में से 100 का ही सामान परचेज कर लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 0 rupees. Okay, this is not a very big subtraction, not a difficult subtraction sum. It's so easy. आपने जितने का सामान परचेज किया आपके पास उतने ही रुपए थे. So you will have nothing. At last, it is part B. If you buy 2 helicopters for your sister, how much money are you left with? Yes, it is the second question and you can say it is the second situation. अगर आप 2 हेलीकॉप्टर्स परचेज करते हो, ओके, तो आपके पास फिर कितने रुपीस बचेंगे? इट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन. चिल्ड्रन, एज यूजुअल द टोटल रुपीस 100. Now let us see what is the cost of helicopter. The cost of helicopter is 30 rupees. It is mentioned here. Look at carefully. Yes, the cost of helicopter is 30 rupees. But here it is asked if you buy 2 helicopters. It means 30 plus 30. एक की कॉस्ट 30 है तो 2 की कॉस्ट होगी 30 plus 30. अब 30 में 30 ऐड कर देंगे, 40, 50, 60. Amount 60. Okay, so you would subtract 60 rupees. Okay children, टोटल 100 रुपीज आपके पास, आपने 60 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो कितने रुपीज बचेंगे? चिल्ड्रन, इन दिस क्वेश्चन और वेन एवर यू डू अ कैलकुलेशन ऑफ मनी यू कैन ऑप्ट 2 मेथड्स. फर्स्ट वन, आपने जितने का सामान परचेज किया ना, हाउ मच मनी यू हैव स्पेंड फॉर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट, उतने रुपीज से आप टोटल की तरफ मूव करेंगे. 60 आपने स्पेंड कर दिए, 100 होने में कितने बाकी होंगे? 70, 80, 90, 100 मीन्स 40 रुपीज. आपकी 4 फिंगर्स ओपन हुई मतलब 40 रुपीज. और आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 0. 10 minus 6 4. 10 को माइंड में रखते हैं, 6 फिंगर ओपन और बैक काउंटिंग. आंसर इज 40. बट चिल्ड्रन, आई प्रेफर टू डू ओरल एडिशन, ओरल सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आपके पास पेन पेपर नहीं होता, आपको भी पता है जब आप मार्केट जाते हो. सो ऑलवेज आई प्रेफर ओरल सब्ट्रैक्शन, ओरल एडिशन. गॉट इट चिल्ड्रन? यू मस्ट ऑप्ट ओरल मेथड. लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन कि आप ओरली कैसे कर सकते हो. 60 आपने स्पेंड कर दिए, आपके पास टोटल थे 100 रुपीज. अब 60 आपने स्पेंड कर दिए तो आपको कितने वापस मिलने चाहिए ना, तो आप 60 से 100 तक काउंट करोगे. 70, अब 1 1 नहीं करेंगे, 61, 62, नो. मनी में हम यूजुअली 10 10 के लिए काउंट कर लेंगे. 60 और 10, 70, 80, 90, 100. आपकी 4 फिंगर्स ऊपर हुई, इट मीन्स 40 रुपीज. सो टोटल आपको कितने रुपीज रिटर्न होंगे? 40 रुपीज. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट B. Got it this one? Okay.
In this one it is said, if you buy a bat for your brother, how much amount you are left with. If you buy a bat for your brother, अगर आप अपने ब्रदर के लिए एक बैट परचेज करते हैं तो आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे. Here the bat is shown and the cost of bat is 80 rupees. 80 रुपीज़ बैट की कॉस्ट है. तो आप क्या करेंगे, 80 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल अमाउंट में से, एंड द टोटल अमाउंट इज गिवन टू यू 100 रुपीज़. ओके, 100 माइनस 80, क्योंकि बैट की कॉस्ट क्या है, 80 रुपीज़. नाउ लेट्स डू सब्ट्रैक्शन. अब टू मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, 80 to 100, 90, 100 मीन्स 20 रुपीज़. और आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, 0 माइनस 0 0, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, आंसर इज 20. 10 को माइंड में रखा, 8 फिंगर्स ओपन और बैक काउंटिंग, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आंसर इज 2. So in this one 100 minus 80 is equal to 20 rupees. Okay children. Next one is, Papa has asked you to buy 2 balls for him. How much money you are left with. In this one, Papa has asked you to buy 2 balls. Suppose आपके फादर ने, आपके पापा ने आपको 2 balls परचेज करने के लिए कहा है, तब आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे. हाउ मच मनी यू आर लेफ्ट विथ. चिल्ड्रन कीप रिमेंबर, व्हेन यू आर परचेजिंग समथिंग, व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग, आपकी मनी कम होगी, और जब हमारे पैसे कम होंगे इट मीन्स आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा. इफ समवन गिविंग यू समथिंग एडिशनल, इफ समवन इज गिविंग यू समथिंग एल्स, इट मीन्स आपकी मनी ज़्यादा होंगी. और जब ज़्यादा होती है कब होती है, जब आप ऐड करते हो. ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. बच्चे आप कुछ चीज़ परचेज करोगे, ऑब्वियस सी बात है आपके पैसे कम होंगे, क्योंकि आपने उसके बदले में कुछ सामान लिया है. ओके, तो सामान लिया है तो आपको अपने पैसे भी तो खर्च करने होंगे ना. ओके, सो सब्ट्रैक्शन करते हैं हम इन सम्स में. टोटल मनी यू आर हैविंग 100 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 30 रुपीज़. 2 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी, 30 प्लस 30 मतलब 60 रुपीज़. ओरल एडिशन 40, 50, 60. आप अपने 3 फिंगर्स ओपन कर सकते हो, 40, 50, 60. माइनस कर देंगे आप 60 रुपीज़ को, और आपका आंसर क्या होगा. फर्स्ट वन, 60 to 100 पहुंचने के लिए आप कितने फिंगर्स ओपन करी, 70, 80, 90, 100 मतलब 4 फिंगर्स, इट मीन्स 40 रुपीज़. एंड सेकेंड वन, 0 में से आप 0 को माइनस करेंगे 0, 10 में से 6 को माइनस करेंगे देन 4, इट मीन्स रुपीज़ 40. ओके चिल्ड्रन, so these were the statement sums, these were the word problems. You have to keep remember when you have to do addition and when you have to do subtraction. When something is going to be purchased means your money is going to be less, it means subtraction. When you have something more money, it means addition. In that case you must do addition. Okay children, so do not get confused. I hope you have got my point, what I am trying to say. If you are confused till, so you can ask me in the online classes. I will sort out your all queries. Okay children, आपको confuse और परेशान बिल्कुल नहीं होना है. आप मुझसे फिर से पूछना, मैं आपको फिर से बताऊंगी. But it is कंपल्सरी, इट इज़ नेसेसरी टू डू प्रैक्टिस. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको सम्स बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे. ओके, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बट प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं आता देन यू कैन आस्क मी अगेन. ओके चिल्ड्रन,
Okay children, so let us take your homework, and your homework is do page number 16, parts A to D in book. You have to do page number 16, parts A to D. These parts I have discussed with you in this lecture, so I think there would be no confusion. And no problem for solving the same sums. But still, if you find any difficulty while solving the sums, you can ask me. And before doing your homework, you must have to watch the video and take online classes. After that, solve the homework. And before online classes, you must watch the video, as because you can make points, you can make notes that in which part you are having confusion, in which part you have doubt. आप उससे नोट्स मेक कर सकते हो कि आपको कहाँ पर, आप उसको पेन डाउन कर सकते हो कि आपको यहाँ पर डाउट है, फिर आप ऑनलाइन क्लास में सेम उससे पूछ सकते हो. ओके चिल्ड्रन, सो इससे आपको भी इजी होगा, मुझे भी इजी होगा, आपको समझ में आएगा कि आपने कौन से पार्ट्स को क्लियर कर लिया है. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट अस डिस्कस द होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस. You all know. Yeah, in the previous lecture your homework was to page number 14, question number 2 and 3. This one I have described you, but here let me explain you again. Circle the articles you can buy in 40 rupees. One has been done for you. आपको उन आर्टिकल्स को सर्कल करना है जो आप 40 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो. So this one 10 rupees, this 30, this 40 rupees, ice cream 25 rupees, candy 5 rupees, flour 10 rupees. All these items we can purchase in 40 rupees. Individually means आप इसमें कंफ्यूज होंगे आई थिंक कि आपको सारे ही टोटल 40 रुपीज में परचेज करने. नो, आपको वो परचेज करने हैं जो आप 40 रुपीज में परचेज कर सकते हो, वो सर्कल करने हैं. टिक द नोट्स एंड कॉइन्स विच मेक द गिवन अमाउंट. 62 मेक करने के लिए 50, 60 and 62. For 89 rupees, 50, 60, 70, 80, 85, 87, 89. Got it children? And the next one was page number 15, parts A to D. This one you had to done. At the amount of money you need to buy these articles, one has been done for you. In this one, first one is done for you, and the second one 2 rupees plus 1 plus 10. This I have taken on in online classes also. So 10 and 1 11, 11 and 2 13, 15 and 5 20, 20 and 10 30, 1 and 2 3, 3 and 5 8, total rupees 8. Okay children, so like this you have to done. And one thing that I have noticed, whenever you do addition or whenever I have given you sums, you forget to place this sign, the sign of money. It is the sign of money. You forgot to place it. आपको ये साइन भी पुट करना, अदरवाइज हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये 30 रुपीज है. इट इज ओनली 30. ये रुपीज है या नहीं, दिस थिंग विल बी डिनोटिंग बाय दिस साइन ओनली. अगर आप ये साइन पुट करते हो तो ही माना जाएगा कि ये रुपीज 30 है. ओके चिल्ड्रन, so this is also including marks whenever you do exam. आपके इसके भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. ओके, सपोज आपने यहाँ नहीं राइट किया, यहाँ पर नहीं राइट किया, तो इसको आपको राइट करना है, फॉरगेट नहीं करना है. ओके चिल्ड्रन, सो हियर आई एम डन. आई होप यू हैव गॉट द कंप्लीट लेक्चर, but still if you have confusion you can ask to me in the online classes. You are most welcome. I will sort out your all queries and your all questions. Let's meet in the next video. Till then, bye bye, take care, and children don't forget to watch videos, क्योंकि आप जब तक वीडियोस नहीं देखोगे आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. ओके, इसलिए वीडियो को देखना भी कंपलसरी है, क्योंकि उसमें कलरफुल मेथड्स है, कलरफुल एनिमेशंस है, तो आपको वो भी देखना ज़रूरी है. कलरफुल स्लाइड्स है, मेथड्स तो
जो मैं पढ़ाती वही होंगे. Okay children, so I'm done. Let's meet in the next video. Bye bye. Take care.